Hi everyone, hi students. Welcome back to Geeks for Geeks everyone. And let's start with today's video. Okay. Let's see who all are here in the class and then I'll start with today's class. Okay. Yeah, so by the title you must already know that what we are going to do in today's class, and let me tell you students that there is a very good thing for you guys in this class particularly. So basically I have included a quiz in this video. Okay, so let's see uh, let's see who all are here in the class. Okay, let me see. Okay, so students, as I already told you that we are in today's class, we are basically going to see how you can create a binary search tree using pre-order traversal and binary tree. And not only this, I'm going to have a quiz of binary trees in this class. So basically we are going to have 4 questions and I'm going to ask these 4 questions to you guys, and again the quiz will be on Mentimeter only. So this will be a Menti quiz, so you guys can just go and I'll tell you the code. You can just write the code and then you can basically once you have written the code, you will see the questions and then you can answer the questions. So quickly you guys just tell me that if my voice is clearly audible to all of you and if the screen is clearly visible. Okay, I guess voice is okay and screen is also visible. So let's start. Okay, let's start with today's class. Okay, you guys, just let me. Okay, so let's start. Let me just first get my pen on the screen. Okay. Okay, now let's see. We have to construct a binary search tree, or you can say BST, from pre-order traversal. Okay, so you guys already know about pre-order traversal, what a pre-order traversal is. I guess that you guys know about it, right? Okay. So in pre-order traversal, basically we have this pattern that for every tree, how we are going to traverse. We are first going to traverse the root, then left, and then right. So this was the pattern for pre-order traversal, right? Hi Tarun. Tarun, you had a doubt. You said in the last class, but you didn't mention the doubt. You can just tell me the doubt. I'll be more than happy to take your doubt over here. Okay. Okay. So this is basically pre-order traversal. Okay. So you will be having this pre-order traversal of a tree, and then you have to construct a binary search tree from that. Okay. So let's see how we can do that. Okay, Tarun, मैंने ध्यान नहीं देखा नहीं Discord. I'll see today and I'll answer you over there. Okay? You can tell your doubt here also. आप यहाँ पे भी doubt बता दो. I'll take your doubt. So, given the traversal, so this is the traversal. As you know from this traversal का pattern that the first element will be the root. So जो हमारा tree होगा, जो भी हमारा tree होगा यहाँ पे, जो भी हमारा tree होगा, I don't know tree क्या होगा, अभी नहीं मालूम हमको कि tree क्या होगा, बट जो भी हमारा ट्री होगा हमें इतना मालूम है कि 10 उसकी रूट होगी. यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा 10, बिकॉज दिस इज द पैटर्न फॉर बाइनरी फॉर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ एनी ट्री, राइट? ओके, हाउ कैन यू इम्पोर्ट वीडियोज इन ऐप लैब? सो इसके लिए तो मुझे आपको अलग से बताना पड़ेगा.
सो आई माइट आंसर इट ओवर देयर ओनली, ओके, बिकॉज ये बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा, DSA से अलग टॉपिक है, तो मैं आपको वहीं पे बताती हूँ, ठीक है ये चीज़। ओके ओके, हाँ, आप इम्पोर्ट लाइक अपने सिस्टम से वीडियो डाल दिए ना आपको ऐप लैब में, हो जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, हो जाएगा, बट मुझे इसके लिए आपको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आई विल एक्सप्लेन दैट ओवर देयर ओनली, ठीक है, मैं आपको डिस्कॉर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगी वो चीज़। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस। सो हमें पता है कि रूट हमारा लेफ्ट, ये रूट हमारा 10 होगा, देन ये जितना भी ये पार्ट है इसमें से हमारा कुछ लेफ्ट होगा एंड कुछ राइट होगा, राइट, तो कुछ पार्ट हमारा लेफ्ट होगा एंड कुछ पार्ट हमारा राइट होगा। ना यू नो फॉर अ बाइनरी सर्च ट्री, फॉर अ बाइनरी सर्च ट्री की हमारी जो रूट होती है, रूट हमेशा छोटी होती है राइट एलिमेंट से, राइट के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, राइट ट्री में जितने भी एलिमेंट्स है राइट सब ट्री में, वो सारे बड़े होंगे रूट से, एंड लेफ्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे छोटे होंगे रूट से। सो ये हमारी रूट है। अब इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो राइट के होंगे, एंड सो बेसिकली इसके बाद क्या बोलूँ मैं, बेसिकली इसके बाद जो भी आपको पहला एलिमेंट ऐसा दिखेगा जो बड़ा होगा, जो इससे बड़ा होगा, तो 10 से बड़ा पहला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला 40, बेसिकली 40, ठीक है, तो उसके बाद ये पूरा मेरा राइट सब ट्री है, मुझे इतना मालूम पड़ गया, अभी इसका ऑर्डर नहीं मालूम मुझे, एंड ये मेरा लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, ये मेरा लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, ठीक है, इतना मुझे मालूम पड़ गया कि ये मेरा 10 मेरा रूट है, एंड 5 1 7 ये मेरे लेफ्ट सब ट्री के पार्ट है, एंड ये मेरे राइट सब ट्री के पार्ट है 40 एंड 50। नाउ इफ आई विल अगेन, ये मैंने इतना ब्रेक कर लिया कि इस तरीके से। नाउ मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई, मेरी प्रॉब्लम हो गई कि मुझे ये वाला सब ट्री क्रिएट करना है और ये वाला सब ट्री क्रिएट करना है। ऊपर का ट्री तो बन चुका है, इतने पोर्शन का ट्री बन चुका, अब मुझे इसका सब ट्री क्रिएट करना है, इसका सब ट्री क्रिएट करना है। नाउ अगेन इफ आई सी दिस these values 5 1 7, then again पहला एलिमेंट मेरा रूट होता है इस डेफिनेशन के हिसाब से, तो 5 मेरा रूट होगा, ठीक है, देन वी हैव दीज टू एलिमेंट्स, इसमें से जो बड़ा होगा वो राइट सब ट्री का पार्ट होगा, तो ये ही बड़ा एलिमेंट है 5 1 7, तो ये मेरा राइट में चला जाएगा। अब बिकॉज इसके आगे कोई एलिमेंट्स नहीं है एंड ये मेरा लेफ्ट में चले जाएगा, तो मैं इस तरीके से डिसाइड कर लिया, ठीक है, ये एक एक एलिमेंट हो गए, तो मैंने इस तरीके से डिसाइड कर लिया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो पहला एलिमेंट मेरा रूट होगा, 40 मेरी रूट हो गई। नाउ 50 राइट में जाएगा बिकॉज 40 से बड़ा है, एंड लेफ्ट में जाने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे नल रहेगा। सो इस तरीके से हमने ये पूरा ट्री क्रिएट कर लिया। ट्री विल बी समथिंग लाइक दिस 10 5 1 7 40 एंड 50, ओके, सो दिस इज माई होल ट्री। ये ट्री कैसे क्रिएट किया मैंने इस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल से, अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क जस्ट राइट नाउ। अगर किसी को कोई भी डाउट है कि मैंने इस ट्रैवर्सल से ये ट्री कैसे क्रिएट किया है, तो जल्दी से मुझसे अभी पूछ लो। एंड स्टूडेंट्स प्लीज स्टे ट्यून टिल द लास्ट, बिकॉज लास्ट में विल बी हैविंग अ क्विज, एंड उस क्विज में जो हमने बाइनरी ट्री पढ़ा है अभी तक उसके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स इन दिस कि ये ट्री कैसे क्रिएट किया गया प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल से, डू लेट मी नो, जल्दी से मुझे बता दो, आई विल टेक योर डाउट, ओके। नाउ यू कैन सी दिस इज द बेसिकली आउटपुट, यही बेसिकली आउटपुट है, एंड मैंने भी कुछ इसी तरीके का ट्री बनाया है, कैसे बनाया है ये आपको बता चुकी हूँ, ओके। नाउ लेट्स सी, सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू डू दिस अगेन। सो हम पहले एक देखेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की होगी। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है, जो सिंपलेस्ट अप्रोच होती है टू सॉल्व द क्वेश्चन। फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे और एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखेंगे जो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होगी, ठीक है, जो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होगी, ओके। सो लेट्स सी दिस। सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इज ऑलवेज रूट। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वैसे ये सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं फिर से बताऊँगी आपको। 5 1, अभी मैंने ऊपर यही एक्सप्लेन किया आपको पूरा पैटर्न की किस तरीके से हमने ट्री बनाया, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारा, ऑलवेज रूट होगा। तो अगर मैं इस ये बोलूँ कि ये एक ट्री का ट्रैवर्सल है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये हमारा क्या हो गया, ये रूट हो गई हमारी, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स बचे।
we first construct the root, then we find the index of the first element which is greater than the root. So, अब हम उस एलिमेंट की इंडेक्स ढूंढेंगे जो हमारी रूट से बड़ी है, तो वो कौन सी है, ये. ओके, इफ आई इंडेक्स दिस 0 1 2 3 4 5, सो फोर्थ इंडेक्स जो है मेरी वो रूट से बड़ी है, विच इज ग्रेटर देन. लेट द इंडेक्स बी आई, इसको हम आई कंसिडर कर लेते हैं. द वैल्यूज बिटवीन रूट एंड आई विल बी द लेफ्ट सब ट्री. रूट से आई के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं ये मेरी क्या होंगी, लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होंगी. एंड आई से लेके लास्ट तक जितनी भी मेरी वैल्यूज हैं ये मेरी क्या होंगी, राइट सब ट्री का पार्ट होंगी. Okay, I will be the part of the values between I and n minus 1 will be the part of right subtree. Divide the pre at index I and recurve for the left and right subtree. So basically आप यहाँ से divide कर दो इसको and इसको आप दो recursive function लगा दो. इसको आप इतने part को आप भेज दो left tree create करने के लिए left node पे and इतने part को आप भेज दो right tree create करने के लिए. नाउ प्रॉब्लम अपने आप में ब्रेक हो गई. नाउ आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई कि आपके पास 5 1 7 ये 3 नंबर्स हैं एंड आपको इसका ट्री क्रिएट करना है. एंड आपकी एक प्रॉब्लम हो गई कि आपके पास 40 और 50 ये दो नंबर्स हैं एंड आपको इसका ट्री क्रिएट करना है, राइट. सो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाएगी. अगेन हेयर द फर्स्ट एलिमेंट विल बी द रूट. सो 5 हमारी रूट हो गई. नाउ यू विल फाइंड द फर्स्ट बिगेस्ट एलिमेंट, फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट विच इज 7. इसको आप यहाँ से ब्रेक कर दोगे, बेसिकली इस इंडेक्स से ब्रेक कर दोगे. तो इससे इस रूट से लेके आई तक, ये आई है हमारा, आई तक जितनी वैल्यूज हैं वो लेफ्ट में जाएंगी. सो लेफ्ट में क्या चला गया 1 एंड आई से लेके एंड तक, तो आई से लेके एंड तक आई इंक्लूसिव है, कौन सी वैल्यू हो गई 7. सो ये आपका लेफ्ट सब ट्री क्रिएट हो गया. इसी तरीके से आपने राइट सब ट्री भी क्रिएट किया था एंड देन आपने इन दोनों को 10 से अटैच कर दिया था बेसिकली. तो इस तरीके से यू हैव क्रिएटेड योर ओन ट्री. होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अगर किसी को डाउट है कि कैसे हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल से ये क्रिएट किया, डू लेट मी नो. ओके, नो नाउ इन 10 5 1 7 40 50 10 इज द फर्स्ट एलिमेंट. 10 जो है हमारा वो फर्स्ट एलिमेंट, सो हमने इसको रूट बना दिया. नाउ लुक फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन 10, वी फाइंड 40. सो वी नो द स्ट्रक्चर कि BST का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि ये एलिमेंट्स लेफ्ट में जाएंगे, ये एलिमेंट्स राइट में जाएंगे. ओके, नाउ we have discussed O of n square. अब हमने O of n square अप्रोच देख ली. नाउ फॉलोइंग दिस, अब हम आइट्रेटिव अप्रोच देखेंगे, ठीक है. आइट्रेटिव अप्रोच में क्या होगा कि हम पहले एक एम्प्टी स्टैक बनाएंगे. हम एक एम्प्टी स्टैक बनाएंगे. मैं कुछ इस तरीके से डाल देती हूँ 10 5 1 7 40 एंड 50, ठीक है. मेक द फर्स्ट वैल्यू एज रूट एंड पुश इन टू द स्टैक. फर्स्ट वैल्यू को रूट बनाओ और स्टैक में पुश कर दो. Okay, keep popping while stack is not empty and the next value is greater than the stack's top value. Make sure this value is the right child of the lost top. Push the new node to the stack. So basically आप क्या कर रहे हो, पहले आपने ये डाला, अभी आप चेक कर रहे हो कि कोई वैल्यू ऐसी है जो रूट से बड़ी है. अगर रूट से बड़ी होगी तो आप उसको राइट सब ट्री का पार्ट बना दोगे. तो आप जैसे ये पॉप करोगे आप चेक करोगे क्या 10 से बड़ा है, नहीं बड़ा है. So there is no point. Then what you will do, if the next value is less than stack top value, make the value as the left child, push the new node to the stack. So जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप 10 आपने फर्स्ट नोड थी हमारी, आपने रूट बना दिया उसको एंड पुश कर दिया. फिर आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट पे आओगे. दिस इज 5, ठीक है. ये स्मॉल है, आप इसको पुश करोगे, ठीक है, आप इसको पुश कर दोगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है. देन यू विल गो टू द नेक्स्ट. जब आप इस पे आओगे, जब आप इसको चेक करोगे, 5 को पुश करोगे और फिर जब आप चेक करोगे कि जो स्टैक की टॉप वैल्यू है वो छोटी है या बड़ी है, तो ये छोटी है तो ये 10 के कहाँ जाएगी, लेफ्ट में जाएगी, ठीक है. फिर आपका ये स्टैक एम्प्टी हो गया. नाउ अगेन ये आपका स्टैक एम्प्टी हो गया. अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें 1 डालोगे. ना ये आपकी रूट है. अब आप इस रूट की बात करो, इस रूट से आप इस रूट पे आ गए. तो 1 5 से छोटा है तो अगेन ये लेफ्ट में चला गया. अगेन आप इसको पॉप कर दोगे, 7 डाल दोगे. 7 हमारा 5 से बड़ा है तो आप क्या कर दोगे, 7 डाल दोगे. ना आपकी स्टैक एम्प्टी हो जाएगी और आप यहाँ से रिटर्न कर जाओगे. बेसिकली आप यहाँ से अब आप 40 जब डालोगे तो 40, तो ये यहाँ से बेसिकली पहले हम रिटर्न हो जाएंगे, फिर हम यहाँ वाली रूट पे पहुँच जाएंगे. ना 40 इज ग्रेटर देन 10, तो वी विल पुट इट एट राइट. ना 50 इज ग्रेटर देन 40, देन वी विल पुट इट एट राइट, ठीक है.
कीप रिपीटिंग स्टेप्स 2 and 3 until the items are remaining in pre. जब तक आइटम्स हैं इसमें तब तक आप इस तरीके से करते रहो and that's how you will create your whole tree. Okay, now before telling you how you can create a binary tree to binary search tree, like binary tree, how you can create a binary search tree from binary tree, let's see the code of how you can create a binary tree from a pre-order traversal. Okay, पहले हम कोड देखते हैं, उसके बाद हम ये वाला पार्ट देखेंगे. Okay, and for all the students who are here, I would request you to stay tuned till the end, because at the end we are going to have a quiz, Menti quiz. So we are going to see the Menti quiz also. Okay, and Menti quiz किस टॉपिक से होगा? उस टॉपिक से होगा जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, that is binary tree. Okay, now let's first go to the main. ये आपने मेन देखा, आपने इस तरीके से बना दिया. ठीक है, इन ऑर्डर रिकर्शन. सो बेसिकली आपने इन ऑर्डर रिकर्शन किया. आप यहाँ पे पहले इन ऑर्डर रूट लेफ्ट. ओके, सो क्रिएट, बेसिकली यहाँ पे हमने कॉल ही नहीं किया शायद. ओके, वी आर गोइंग टू सी दिस फंक्शन क्लास क्रिएट BST फ्रॉम प्री ऑर्डर. ओके, प्राइवेट स्टैटिक नोड नन. आप अपनी नोड को प्राइवेट रखोगे. ओके, बिकॉज यू डोंट वांट द डेटा टू गो टू द क्लाइंट. ओके, सी मैं बस इस कोड पे फोकस करूंगी, इस कोड पे ध्यान देना आप लोग. लेट मी गेट द पेन. ओके, मैं सिर्फ इस कोड पे ध्यान दूंगी. अगर आपका नोड नल है, जो हमारी फर्स्ट अप्रोच थी, क्या थी? n² वाली. उसमें क्या था आपका? अगर ये डेटा है 10, 5, 1, 7, 40 एंड 50. अप्रोच क्या थी कि पहली वाली तो रूट होगी, राइट? तो इनिशियली ये नोड नल है, तो आपने एक न्यू नोड बनाई एंड उसमें डेटा डाला. ठीक है, नाउ डेटा क्या डाला आपने? पहली नोड तो 10 होगी. नाउ नेक्स्ट इज कि अब आपकी नोड नल नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? चेक करोगे कि आपका क्या नोड का डाटा बड़ा है आपके डेटा से. तो अब आप 5 की बात कर रहे हो, क्या वो बड़ा है? नहीं, वो बड़ा नहीं है. सो यू विल नॉट गो टू दिस. आप ये वाली कंडीशन चेक करोगे कि आपका नोड का डेटा छोटा है डेटा से. हाँ, ओके, सॉरी, आई हैव सेड रॉन्ग. सो अगर आपका डेटा छोटा है नोड के डेटा से, तो वो लेफ्ट में जाएगा. ऑब्वियसली 5 इज स्मॉलर, सो ये लेफ्ट पार्ट में जाएगा. ओके, नाउ अगर आपका नोड का डेटा बड़ा है तो वो राइट में जाएगा. ठीक है, सो अभी तो 1, आप नेक्स्ट 1 पे आओगे. सो 1 भी बड़ा है, 1 भी छोटा है, सो 1 भी इसी पार्ट में जाएगा. 7 भी इसी पार्ट में जाएगा. देन आप 40 में आओगे, 40 इस पार्ट में जाएगा, 50 इस पार्ट में जाएगा. देन अगेन ये सेम फंक्शंस कॉल होंगे इन दोनों सब ट्रीज पे, राइट? सो अगेन ये 5 रूट बनेगी, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 7 बनेगा. अगेन 40 रूट बनेगी हमारी, क्योंकि पहली वैल्यू रूट होती है. ये डेटा बड़ा है 40 से, सो ये राइट में जाके फिक्स हो जाएगा. एंड दैट्स हाउ यू विल क्रिएट द होल ट्री. ओके, आई विल जस्ट इन अ फ्यू बिट आई विल जस्ट रन एंड शो यू द आउटपुट. ठीक है, इफ आई विल रन, you will see the output in a bit. See 157 बेसिकली ये हमने अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर दिया. एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का असेंडिंग ऑर्डर में उनका लाइक सॉर्टेड होते हैं नंबर्स. सो इट इज 1, 5, 7, 10, 40, 50 विच इज परफेक्टली फाइन. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड अप्रोच. द सेकेंड अप्रोच it was to use the stack. So here you can see हमने एक जो जीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट था 10, उसको हमने नोड रूट बना दिया. देन आपने एक स्टैक बनाया एंड आपने स्टैक में अपने पुश कर दिया रूट. नाउ आप फर्स्ट एलिमेंट से अगर मैं बात करूँ, वेट, अगर मैं बात करूँ 10, 1, 5, 7 या 10, 5, 1, 7, 40, 50. सो आपने 10 को रूट बना दिया एंड देन आपने 10 को पुश कर दिया. आप फर्स्ट इंडेक्स यानी यहाँ से आगे तक आइट्रेट करोगे कि अगर आपने एक टेम्प बनाई, एक टेम्प नोड बनाई, दैट इज नल, वाइल एस इज नॉट एम्प्टी एंड योर वैल्यू इज ग्रेटर देन द पीक वैल्यू. सो क्या ये वैल्यू बड़ी है पीक वैल्यू से? नहीं. व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज आप एल्स में जाओगे. टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, तो टेम्प तो नल है अभी. आप एल्स में जाओगे, क्या करोगे? आप टेम्प से पीक वैल्यू निकालोगे, टेम्प में पीक वैल्यू डालोगे एंड टेम्प के लेफ्ट में आप आई डालोगे. तो बेसिकली अगर ये वैल्यू बड़ी नहीं है तो इट मीन्स छोटी है, राइट? छोटी है तो इट मीन्स आपको इसको लेफ्ट साइड पे डालना है. ओके, सो आई होप ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि जब नई नल होगी तो यानी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, राइट?
ट्रू हो गई तो इसका मतलब आप ये चीज़ लाइक ये चीज़ फॉलो करोगे, टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो यानी अगर एलिमेंट बड़ा है तो वो राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। इस कोड में कुछ भी बहुत खास नहीं है, अगर आपने मेरी क्लासेस पहले अच्छे से ली हैं और आज की चीज़ अच्छे से समझी है तो आप बहुत ईजिली इस कोड को समझ जाओगे। इफ़ यू हैव सीन बाइनरी ट्रीज की वीडियो अच्छे से तो दिस विल बी रियली ईजी फॉर यू, ओके। Okay, now let's see how you can basically create a binary tree from a binary tree, search tree from a binary tree. Okay, so let's see that. See, so basically आपके पास एक बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री आपको पता है कि बाइनरी ट्री क्या होता है कि उसके दो चाइल्ड्स होते हैं, लाइक हर नोड के दो चाइल्ड होते हैं, बट देयर इज नो सच कंडीशन जो हमारी बाइनरी सर्च ट्री में होती है कि लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यूज़ छोटी होंगी रूट से एंड राइट सब ट्री में सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी। तो वहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। तो नॉर्मल बाइनरी ट्री आपको दिया है और आपको उसको बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करना है, बट आपका कन्वर्जन जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपके बाइनरी ट्री का लाइक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहना चाहिए। ओके, व्हाट आई मीन बाय दैट इज आप इनपुट एक बार देखो एंड देन आप आउटपुट देखो। सो यू कैन सी कि आपका इनपुट और आउटपुट कुछ इस तरीके से है कि ये एक रूट नोड है, राइट, एंड इसके दो चाइल्ड्स हैं लेफ्ट एंड राइट, एंड देन आपके जो लेफ्ट चाइल्ड है उसके दो चाइल्ड्स हैं। सो इस चीज़ को हम मेंटेन करना है, हमको इसी ट्री को, इसी स्ट्रक्चर को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि वो बाइनरी सर्च ट्री बन जाए। सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने इसको बेसिकली 8 यहाँ पे, 4, 10 एंड 2 एंड 7। सो इसकी अप्रोच जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। आई विल बी टेलिंग यू हाउ यू कैन डू दैट। बेसिकली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी एंड यू गाइज हैव टू राइट द कोड फॉर दैट। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप एक टेम्पररी एरे बनाओगे ARR। उसमें क्या करोगे कि जो आपका ट्री था, लेट मी जस्ट गेट टू द ट्री, 10 2 7 8 4। ओके, सो इट इज 10 2 7 8 4। ओके सॉरी 4 8, कुछ इसी तरीके से होगा। ओके सॉरी, ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। सो लेट मी डू वन थिंग, या just give me a second. Okay, so it is something like this। हमारा जो ट्री है वो इस तरीके से 10 10 2 7 8 4, 10 2 7 8 4। okay, and the output is 8 4 10 2 7। okay, 8 4 10 2 7। so this is the input and this is the output। so सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप एक टेम्पररी एरे बनाओगे, एक आप एरे क्रिएट करोगे ARR दैट स्टोर्स द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द ट्री। सो आप इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टोर करोगे। सो इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इफ यू गाइज रिमेंबर, इज लेफ्ट रूट एंड राइट, राइट। सो लेफ्ट क्या है 8, देन रूट क्या है 2, देन राइट क्या है 4, देन आपका पूरा लेफ्ट सब ट्री हो गया, रूट क्या हो गई 10 एंड देन 7। सो ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। ओके, देन सॉर्ट द टेम्प एरे। जो आपका टेम्पररी एरे है आप उसको सॉर्ट कर दोगे। ओके, उसको सॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको या तो क्विक सॉर्ट अप्लाई कर दो, बट अगर आप इस केस में क्विक सॉर्ट अप्लाई करोगे तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी O ऑफ n²। सो यहाँ पे आपको n log n अप्लाई करनी है। तो आप हीप सॉर्ट यूज कर सकते हो या मर्ज सॉर्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। हीप सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आफ्टर द सॉर्टिंग हैपेंस आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2 4 7 8 10। सो ये आपका सॉर्टेड एरे बन गया। ओके, दिस इज योर सॉर्टेड एरे। ओके, this will be your sorted array। okay, so yes, so where I was, okay, I was here। so this is my sorted array। now again do in order traversal of the tree and copy array element to each of the tree node। okay, so आप क्या करोगे, अगेन आप in order traversal करोगे। आप
इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बेसिकली जब करोगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे. नाउ यू वांट टू फोकस ऑन लोकेशंस, ठीक है. सो लोकेशन वाइज आप चलोगे. सो सबसे पहले आप इस लोकेशन पे पहुंचोगे, यहाँ पे आप कॉपी क्या करोगे, आप 2 कॉपी करोगे, ठीक है. यहाँ पे आप 2 कॉपी करोगे, ठीक है. इस प्लेस पे 8 को हटा के आप 2 लिख दोगे, मतलब 8 की जगह पे 2 लिख दोगे, राइट. लेट मी गेट अ डिफरेंट कलर पेन. ओके, 8 की जगह पे आप क्या करोगे, आप 2 लिखोगे. देन आप आगे बढ़ोगे, रूट लेफ्ट के बाद कहाँ जाते हैं हम, रूट पे जाते हैं. रूट पे क्या करोगे, 4 कॉपी करोगे. देन आप राइट पे जाओगे, राइट पे क्या कॉपी करोगे, 7 कॉपी करोगे. देन ये लेफ्ट हो गया. अब आप रूट पे जाओगे, रूट पे क्या कॉपी करोगे, इसको हटा के आप इसकी जगह 8 करोगे. एंड देन आप राइट पे जाओगे तो लास्ट में कौन सी वैल्यू है आपकी, 10. बेसिकली आप उसकी उधर से आप ट्री से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके लोकेशन ले रहे हो एंड वैल्यूज आप यहाँ से ले रहे हो, ठीक है. सो यहाँ से वैल्यूज उठा के आप इधर कॉपी करते चले जाओगे तो आपका ट्री कुछ इस तरीके से बन जाएगा. एंड दिस इज द बाइनरी सर्च ट्री. ओके ओके. So I guess that this helped you guys and you have understood it. Okay, so let me, yeah. So so that was all from my side, and I hope that you have understood it and you have learned how you can convert a pre-order tree to a pre-order traversal or a binary tree to a binary search tree. And we are going to do a lot of because there was not a lot of students in the class, so I didn't take the quiz. I'll take the quiz next time. I have prepared the quiz, but I'll take the quiz next time so that you guys will also be basically able to answer me at the time of the class. See, I did had the quiz and prepared, but because there were not many students, so I didn't take it. And I also have a homework for you, and the homework is that you guys have to write the code for the last part which I told you, how you can convert a binary tree into a binary search tree. So you have to write the code for that. Okay, so yeah, so that's it. I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye. Keep learning, keep coding, everyone.